हेलो बच्चों। तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं नीट के सारे PYQs। ऐसे वील हैव दिस सीरीज। इन दिस हम सारे नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इन द फर्स्ट क्वेश्चन इट इज गिवन कि मास ऑफ प्लैनेट दे रखा है 1/10 ऑफ दैट ऑफ अर्थ और डायमीटर दे रखा है दैट ऑफ हाफ ऑफ अर्थ। क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में आस्क्ड है व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ एनी प्लैनेट। सो स्टूडेंट्स, द की कॉन्सेप्ट इज किसी भी प्लेनेट का अगर आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोले, सो दैट इज यू नीड टू कैलकुलेट इज सिंपली g into mass of that planet divided by radius का square of that planet. Okay, so what we need to do is equals to g mass of planet को आप simply लिख दो mass of earth के टर्म में, that is simply मैंने लिखा mass of earth के 1/10, तो this will become 1/10 divided by radius का square, that is diameter अगर आधा है तो simply radius भी आधा होगा, तो we can write radius of the planet is simply अर्थ के रेडियस का आधा का स्क्वायर। सो यहां से स्टूडेंट्स वी कैन राइट g into mass of earth divided by radius of earth का square, and this 2 का term will go in the numerator and it will become 4. 2 to 4, that is, so from here, and this 10 term will come in the denominator due to the mass term. अगर आप इसको solve करोगे you will get 2/5 into, students, this term is g into mass earth divided by r earth का square. Isn't it the same as the value of g? So we can write simply 2/5 into 9.8, students. So that value is simply 3.92 meter per second square. So the option which is correct is option number 4. I hope students you are following me. Let's come to the question number 2. Question number 2 में it is asked the minimum energy required to launch a satellite of mass m in a circular orbit and an altitude 2r from surface of earth. So it is asked कि what is the minimum energy required कि a satellite is present at the surface of earth, that is r, से यहाँ से मुझे launch करना है to a place that is at a distance 2r. So students, simply what do you need to write? Energy at 2 position minus energy at 1. That is, कितनी extra energy चाहिए इस E2 energy उसके पास finally है minus initially it had E1 energy. So extra energy हमें कितनी चाहिए? That is E2 minus E1. So from here, what did we draw? What we'll do? We'll write for the E1, that is energy at the surface of Earth. So students, जब सैटेलाइट इज सिंपली एट सरफेस ऑफ अर्थ, वो बॉडी भी रेस्ट पे है, सैटेलाइट रेस्ट पे है, सो व्हाट विल बी द एनर्जी? सो यू से दैट इज सिंपली द पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि बॉडी अगर रेस्ट पे है तो कोई काइनेटिक तो होगी नहीं, सिंपली पोटेंशियल एनर्जी दैट इज एट पोजिशन 1, ओनली पोटेंशियल एनर्जी। स्टूडेंट्स, so what will be the energy at 2 position? You'll say कि कुछ तो उसकी एनर्जी होगी, कुछ तो काइनेटिक एनर्जी होगी, प्लस कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। स्टूडेंट्स, इट इज गिवन that 2r is from the surface of earth and this is r, so the total distance is actually 3r. So you'll say E2 energy at the second point, what it will be? It will be simply minus gmm by total energy is, you know students, it is written as 2r, that is the distance. In the case it can be written as 2 into what is the distance? You will write simply 3r. This is the formula, r is the distance. Okay, so you got that the extra energy E2 energy at that point is simply minus gmm by 6r. This is the total energy. This is made up of E2 is total energy, that is kinetic plus potential energy. Okay students, so now we need to calculate extra energy कितनी होगी. Extra energy will be simply E2 minus E1. E2 कितना होगा students? That is minus gmm by 6r minus the initial energy.
that is minus gmm by r. Students, when you solve this, simply the result will be 5/6 gmm by r. This is our answer, that is इतनी extra energy हमें अभी भी चाहिए. Okay students, so let's proceed to the next question. That is question number 3rd. In this question it is given escape velocity is given out to be 11.2. Students, escape velocity is the velocity, minimum कितनी velocity दे कि वो बॉडी अर्थ के एटमॉस्फेयर को छोड़ के दूसरी जगह चले जाए. So that is given out to be VSK for earth is given out to be 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. जब हम किसी भी बॉडी को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से छोड़ते हैं तो इट गेट्स आउट ऑफ द यूनिवर्स, दैट इज ये अर्थ के एटमॉस्फेयर को छोड़ देती है, बाहर चली जाती है विद जीरो काइनेटिक एनर्जी. जब ये बाहर होती है, आउट होती है इन द यूनिवर्स, इट हैव जीरो काइनेटिक एनर्जी. स्टूडेंट्स, लेकिन अगर हम इसी बॉडी को किसी और वेलोसिटी से फेंकते हैं, सो वी हैव सम अदर वेलोसिटी, यानी इससे ज़्यादा वेलोसिटी से अगर आप फेंकोगे तो जब ये बॉडी यूनिवर्स में जाएगी तो इट विल हैव सम अनदर एनर्जी ऑल्सो, सम अदर वेलोसिटी ऑल्सो. सो द की कॉन्सेप्ट इज सिंपली स्टूडेंट्स डू मेमोराइज द फॉर्मूला, दैट इज velocity in the universe is given by what is the velocity with which it is thrown, that is whatever the value is given in the question का square minus v escape का square. So students, from here you can easily write v dash value will be किस velocity से throw किया गया, that is 22.4 का square minus what is the escape velocity, that is 11.2 का square. So when you write v dash is equals to simply 22.4, I can write it as 11.2 into 2 का square. क्यों लिख रहे हैं स्टूडेंट्स ऐसे? so that हम 11.2 के टर्म्स में ले आए और कैलकुलेशंस इजी हो जाए. So v dash will be simply 11.2 को मैं कॉमन लेके आती हूँ, that will be common taken out. अंदर बचेगा 2 का स्क्वायर, that is 4 minus 1. So we will get v dash is equals to simply 11.2 बाहर, root 4 minus 1 अंदर, that is root 3 option. So it is clearly visible that it is option number 2nd. Okay students, let's go to the next question, that is r is the radius of earth, g is the acceleration due to gravity, mean density. Students, whenever in the question आपको मास का टर्म ना गिवन हो और डेंसिटी के टर्म्स में पूछे, द की कॉन्सेप्ट इज आप सिंपली डेंसिटी को ऐसे लिखो एज मास बाय 4/3 पाई आर क्यूब. सिंपली आप क्या करोगे, मास के टर्म को एक तरफ लिखोगे और जो भी मास का टर्म है उसको लिखोगे इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, इट विल बिकम 4/3 पाई आर क्यूब इनटू रो. आपने क्या किया, मास के टर्म्स को लिख दिया इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी. ठीक है, अब ना क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि जी की वैल्यू जानना चाहता है, तो जी के टर्म्स में हम सारा फॉर्मूला लिख रहे हैं, दैट इज कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर. G इज इक्वल्स टू कैपिटल G, मास की जगह में लिख रही हूँ 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर. सो फ्रॉम हेयर वी गॉट दैट G की वैल्यू इज आर स्क्वायर विल गेट कैंसिल, यहाँ पे बच जाएगा 4/3 पाई आर रो G. क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द मीन डेंसिटी, रो के टर्म एक तरफ बाकी एक तरफ, इट विल बिकम 3G by 4 pi r G. So simply our formula will get out to be this, that is option number first is the right answer. So students, let's proceed to the next question, that is two bodies are placed at a distance r, that is question number 5. Two bodies है, first is m, second is 9m, are placed at a distance r. दोनों को मैंने r distance पे रखा हुआ है. पोटेंशियल पता लगाना है जहां पे ग्रेविटेशन फील्ड जीरो. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स वी नीड टू कैलकुलेट ग्रेविटेशन फील्ड कहाँ जीरो. सो लेट्स प्रोसीड, लेट्स गेट स्टार्टेड. देखो बीच में वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो भी ग्रेविटेशन फील्ड है दैट इज समवट जीरो इन बिटवीन.
सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, लेट अस सपोज यहां से जहां पे भी ग्रेविटेशन फील्ड जीरो है, दैट इज अ डिस्टेंस x फ्रॉम द स्मॉल मास. Okay, students, and so the same point will be at a distance, now you'll say r minus x from the other mass. Okay, now we need to calculate वो point जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है. दैट इज, मैंने बोला कि यहाँ पे जो ग्रेविटेशन फील्ड होगा, दैट इज आप एक छोटे से मास m को रखो. सो यू विल से यहाँ पे अगर छोटा सा मास m रखेंगे, सो इट विल हैव एन अट्रैक्शन टुवर्ड्स दिस. दैट इज इसका जो ग्रेविटेशन फील्ड होगा विल बी इन दिस डायरेक्शन. सिमिलरली द ग्रेविटेशन फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन फॉर दिस मास, क्योंकि स्टूडेंट्स जो स्मॉल मास होगा दैट विल बी अट्रैक्टेड बाय द 9m मास. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, दोनों ग्रेविटेशन फील्ड को इक्वेट करेंगे. इट विल बिकम कैपिटल GM by, we are writing this gravitation field, that is x square is equals to GM into the other mass, that is 9m divided by r माइनस एक्स का स्क्वायर. आपने क्या किया, सबसे पहले यू रोट फॉर दिस, ये वाला लिखा g इंटू कैपिटल m इंटू m डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर. देन आपने ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखी g कैपिटल m इंटू 9m डिवाइडेड बाय दिस. g से g कैंसिल, m से m कैंसिल, स्मॉल m से m कैंसिल, यू विल गेट 1 बाई x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 r माइनस x का स्क्वायर. आपको क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर हटा देने हैं. तो विल गेट 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 3r माइनस एक्स. सिंपली सॉल्व इट फॉर x इक्वेशन. यू विल गेट 1 बाई r माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3x. r की वैल्यू हो जाएगी 4x. यहां से आप सिंपली लिख सकते हो x की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स r बाई 4. सो वी नीड टू कैलकुलेट पोटेंशियल एट अ पॉइंट where x is r by 4. तो स्टूडेंट्स पोटेंशियल का सिंपल फॉर्मूला होता है दैट इज माइनस GM बाई r. यहाँ पे दो मास है तो दो मासेस के लिए लिख रहे हैं. पहला माइनस GM इन डिवाइडेड बाय दूरी. दूरी कितनी होगी इस पॉइंट पे पता लगाना है ड्यू टू दिस मास. सो यू विल राइट दिस दूरी दैट इज x की वैल्यू हो जाएगी r बाई 4. Similarly, due to other mass, that will be minus g into the mass of other body, that is simply you write 9m divided by the duri. This duri, what is this distance? That is simply r minus x. X की value है r by 4. So when you solve, you will get students the value to be minus 4gm by r, and this term will get out to be minus 12gm by r. So जब आप इसको सॉल्व करोगे you will get minus 16gm by r. Students, so right answer is option number 2. Let's proceed to the next question. That is, in this question it is given कि there is a position 1. आप 1 position से 2 position तक जाते हैं, E position तक जाते हैं through 3 different path. या तो आप either you go from 1, you go from 2 or you go from 3. क्वेश्चन में बोला है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशन ज्यादा किससे होगा. स्टूडेंट्स, सो द की पॉइंट इज वर्क डन, ग्रेविटेशन जो फील्ड है, ग्रेविटेशन जो फोर्स है, दैट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. कंजर्वेटिव मीन्स इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ. इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ. यानी आपके पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है ऑन योर इनिशियल एज वेल एज इट डिपेंड्स ऑन योर फाइनल पोजीशन. आपके सिर्फ 2 पोजीशन पे डिपेंड करता है, दैट इज इनिशियल और फाइनल पोजीशन. तो इन दिस केस ए एंड ई दोनों ही जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन है स्टूडेंट्स, दैट आर सेम. दैट इज तीनों ही केसेस में, तीनों ही पॉइंट्स में आइदर थ्रू 1 और 2, 3 work done is same. Work done is same because initial and final position are same. path पे depend नहीं करता gravitation field. Similarly students, आपसे ये पूछ सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगर यहाँ पे चार्ज दे रखे होते तो भी आपका आंसर यही होता. हाँ, अगर यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स पूछता स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करती फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में, तो आपका वर्क डन जाता होता फ्रॉम
A to E अगर हम फर्स्ट पार्ट से जाते हैं। Okay students, so let's move to the next question. I hope this was clear to you. In the next question, it is given potential की value is given out to be minus k by x. You need to calculate electrostatic gravitational field. So students, field की value हो जाएगी simply minus delta v by delta x. That is partial differentiation of potential with respect to x. So you'll get students the value to be minus comes outside. Potential की जगह you will write as minus k by x. Minus minus get cancelled. You will get gravitational field to be delta by delta x of k by x. K is a constant which automatically comes out. So students, inside hoga delta by delta x 1 by x. You can clearly write it is k minus 1 by x square. Simply students, you need to write the differentiation. 1 by x का differentiation होता है minus 1 by x square. Now examiner wants you to calculate at position 2. At 2 तो आप सीधा बोलोगे ग्रेविटेशन फील्ड की वैल्यू होगी माइनस के. x की जगह 2 रखोगे, it will become 4. So the answer is minus k by 4. That is option number 4. Students, let's move to the next question. That is a question number next is 9th. In this it is given mass is given to you, gravitation force given to you. You need to calculate gravitation field intensity. Students, gravitation field is equals to simply gravitation force divided by mass. ग्रेविटेशन फील्ड की वैल्यू आपको पता लगानी है इज इक्वल्स टू फोर्स. व्हाट इज द फोर्स गिवन टू यू? दैट इज सिंपली 3. व्हाट इज मास? मास की जगह आप लिखोगे 60 ग्राम. दैट इज 60 डिवाइडेड बाय 1000. जीरो गेट कैंसिल्ड. फील्ड की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स दैट इज 3 1 जा 3 2 जा. दैट इज सिंपली 100 डिवाइडेड बाय 2. दैट इज योर आंसर विल कम आउट टू बी 50. स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशन फील्ड की वैल्यू होती है न्यूटन पर केजी. So our option gets 4. So the correct answer to the question is option 4. Let's move to the next question. That is escape velocity given है to be v. Escape velocity दूसरे planet पे कितनी होगी when radius 4 times that of Earth or same mass density. Students, so we know the escape velocity formula is simply under root of 2GRE. आप यहाँ पे g की जगह में यूज कर रही हूँ एज 2gm बाई r इंटू r का टर्म गेट कैंसिल तो यहाँ पे बचेगा अंडर रूट 2gm बाई. नाउ सिंस क्वेश्चन में मास डेंसिटी की बात कर रहा है तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मास के टर्म को हटा के विल राइट मास डेंसिटी का टर्म. सो दिस विल बिकम 2gr एज इट इज. मास की जगह स्टूडेंट्स मैं लिख रही हूँ एज द डेंसिटी टर्म. मास इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी दैट इज सिंपली density into volume is given by 4 pi 3 I r cube is simply the escape velocity in terms of density. Students, जब आप इसे सॉल्व करोगे you will get as simply 8 pi g rho r square by 3. आपको क्या करना है, सीधा सीधा दूसरे केस में, ये तो हमारे v escape for earth क्वेश्चन में बोल रहा है एक और प्लैनेट है जहां पे सारे टर्म्स कांस्टेंट है एज दैट ऑफ अर्थ. आप सारे टर्म एज इट इज लिख दो 8/3 पाई जी रो. रेडियस क्वेश्चन में बोल रहा है 4 गुना है तो इसके रेडियस की जगह 4 गुना लिखोगे तो इट विल बिकम 4r स्क्वायर. व्हेन यू विल सॉल्व 4 विल टर्म कम एज इट इज. दिस इज v एस्केप ऑफ प्लैनेट. 4 इंटू बाकी के टर्म्स जो बचेंगे अगर आप उसे देखोगे तो दैट इज सेम एज v एस्केप ऑफ अर्थ. You'll get simply 4 into v. So the option which is right is option number first. Let's proceed to the next question. I hope students you are following me. In this question, next question number 11, it is given a particle is thrown with velocity this.
from the surface of earth, maximum height above the surface. Students, the key concept is या तो कभी maximum height बोले या फिर आपसे जिक्र करे velocity at any point. So the best thing which you can do is apply conservation of energy. क्या यूज करेंगे आप? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. कैसे देखो? सो विल राइट कि अ प्लैनेट, दिस इज अ प्लैनेट दिस, यहां से मैंने उसे वेलोसिटी से थ्रो किया और मैक्सिमम हाइट लेटर सपोज वो ये हाइट तक जाती है. तो अब हम क्या करने वाले हैं? विल अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज एनर्जी एट 1, और ये है द सेकेंड पॉइंट, दैट इज एनर्जी एट 2. So we'll say simply energy at 1 will be equal to energy at 2 position. Okay, students. So what is the energy at 1? So you'll write potential energy plus kinetic energy at 1 will be equal to potential energy plus kinetic energy at second position. Okay, students. So what is the potential energy at 1? So you'll write potential energy at 1 will become simply, since it is at the surface, potential 1 तो बिल्कुल surface पे ही है, so you'll write potential energy is minus gmm by r, क्योंकि surface पे ही है तो r का टर्म आता है. काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? स्टूडेंट्स, आपने कितने वेलोसिटी के साथ इसे फेंका? गिवन है क्वेश्चन में k इंटू वी ई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट सेकेंड पॉइंट क्या होगा? तो आप बोलोगे वो जब h हाइट तक जा चुका है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी r प्लस एच. काइनेटिक एनर्जी क्या होगी स्टूडेंट्स उस पॉइंट पे? दैट विल बी सिंपली जीरो. वाई जीरो? क्योंकि कोई भी चीज अपनी मैक्सिमम डिस्टेंस चल चुका है तो उस पॉइंट पे उस पे कितनी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी, दैट इज जीरो. नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू राइट? माइनस जी एम एम बाई आर प्लस हाफ एम की स्क्वायर वी एस्केप. यहाँ पे वी एस्केप की जगह हम लिखेंगे वी एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर, दैट इज सिंपली जी एम बाई आर. ये हमें पता है, यही वी एस्केप वेलोसिटी होती है, माइनस जी एम एम आर प्लस एच. स्टूडेंट्स, फॉर द आंसर वी नीड टू कैलकुलेट दिस एच वैल्यू. तो अब क्या करेंगे? बस इसे सॉल्व करेंगे. अगर आप ध्यान से देखोगे जी एम एम, दीज टर्म गेट कैंसिल फ्रॉम द इक्वेशन. इट विल बिकम माइनस 1 बाय आर प्लस k square is equals to by r is equals to minus 1 by r plus h. अब आपको क्या करना है? इसकी इक्वेशन को सॉल्व करना है. दैट इज हम यूं ले जा सकते हैं कि वी कैन सिंपली राइट इट एज k square minus 1, that is k square minus 1 by r is equals to 1 by r plus h. तो ये बन जाएगा r के टर्म एक तरफ, r प्लस h एक तरफ, k स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू r. r के सारे टर्म्स एक तरफ लिख दो, बाकी सारे टर्म्स एक तरफ. ये बन जाएगा 1 माइनस k स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू, आप h के टर्म्स एक तरफ लिख दोगे, h के टर्म्स हो जाएंगे k स्क्वायर माइनस 1. जब आप इसे सॉल्व करोगे r की वैल्यू आएगी k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस k स्क्वायर इज इक्वल्स टू h. तो यहां से आपने सीधे सीधे h की वैल्यू निकाल दी. ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है. दैट इज, इट इज क्लियरली विजिबल दैट इट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज, एक बॉडी है दैट वेट 72 kg ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. इसका फोर्स क्या होगा, वेट क्या होगा जब ये इतनी ऊपर चली जाएगी? लुक स्टूडेंट्स, वेट इज गिवन बाय mg. अगर एक बॉडी एक हाइट ऊपर चली जाती है तो सारी चीजें तो तब भी सेम रहेंगी. द थिंग विच गेट चेंज्ड इज दिस g डैश. अगर आप एक h हाइट ऊपर जाओगे तो वहां पे g हाइट चेंज हो जाएगी. तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं उस h हाइट पे g डैश की वैल्यू कैलकुलेट करूंगी. तो g डैश की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स, दैट इज g डैश की वैल्यू होगी सिंपली g 1 प्लस h बाई r. क्योंकि आप एक सिग्निफिकेंट हाइट पे जा रहे हो तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, दैट इज g डैश इज इक्वल्स टू g 1 प्लस h की जगह स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू राइट हाफ द रेडियस, दैट इज r बाई 2r. सो इट गेट कैंसिल. g डैश की जगह वैल्यू आएगी g, ये बन जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2, दैट इज 3 बाई 2 का स्क्वायर. g डैश की वैल्यू आएगी 4g बाई 9.
सो स्टूडेंट्स, तो जी डैश की वैल्यू आई है 4g/9. सिंपली आपको फोर्स पता लगाना है, तो वी कैन राइट वेट इज इक्वल्स टू mg दैट इज ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय न्यू वेट विच इज एट सम हाइट इनटू जी डैश. तो यहाँ से आप क्लियरली स्टूडेंट्स देख सकते हो कि जो नया वेट होगा दैट इज सिंपली m टर्म्स गेट कैंसिल, नया वेट हो जाएगा सिंपली आप इसे लिखोगे न्यू वेट इनटू द जी प्रीवियस इज इक्वल्स टू न्यू जी डैश इनटू द प्रीवियस वेट. तो न्यू वेट विल कम आउट टू बी जी डैश बाय जी इनटू डब्ल्यू. सिंपली अगर आप ये वाली इक्वेशन यूज करोगे और वेट जो 72 न्यूटन यूज करोगे, दोनों को जब इस इक्वेशन में रखोगे विल गेट 4/9 into 72. Students, this term get cancelled and you will get 32. This is 8. So this is 32 Newton. So एक height पे you will have 32 Newton force. So the option is option number 4. I hope students you are finding it easy. Let's come to the next question. In this it is given, at what depth the value of acceleration of gravity becomes 1/n times the value of surface of earth. सो जी डैश की जो वैल्यू है वो बोल रहा है कि ऐसा मैं कितनी हाइट डेप्थ पे जाऊं कि जी डैश उस पॉइंट पे बन जाए 1/nth ऑफ जी. तो हम लिखेंगे जी डैश इज सिंपली 1 माइनस डी बाई आर. आपने लिखा जी डैश वैल्यू एट दैट पॉइंट विल बी जी बाई एन इज इक्वल्स टू जी 1 माइनस डी बाई आर. जी का टर्म गेट कैंसिल, ये बन जाएगा 1/n इज इक्वल्स टू 1 माइनस डी बाई आर. यहां से आपने देखा 1/n एक तरफ, ये बन जाएगा 1 माइनस डी बाई आर, ये बन जाएगा माइनस डी बाई आर इज इक्वल्स टू 1/n माइनस 1. आप इसे सॉल्व करें और लिखेंगे एज माइनस डी बाई आर इज इक्वल्स टू 1 माइनस n बाई n. डी का टर्म जब आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट n माइनस 1 इंटू आर डिवाइडेड बाय n. तो आपको कितने उस पे जाना चाहिए, दैट इज गिवन बाय this term. So the correct answer is option number 3rd. Let's move to the next question. In this question, it is given, assuming gravitation potential energy to be zero at infinity. Okay, change in potential क्या होगा when you take it at an height h. जब आप एक h height तक जाते हो, तो स्टूडेंट्स व्हाट आर वी गोइंग टू राइट कि इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है जब आप एक r हाइट पे हो, और आपको लिखनी है जब आप एक h हाइट पे चले जाओगे तब आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइनल लिखनी है. दिस इज पोटेंशियल एनर्जी फाइनल एंड दिस इज पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल. आपको ये दोनों टर्म स्टूडेंट्स यहाँ पे मेंशन करने हैं. सो हमने लिखा पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज सिंपली माइनस जी एम एम बाई यू राइट आर, क्योंकि इनिशियली स्टूडेंट्स हमारा पार्टिकल यहाँ पे था. देन द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल विल बी माइनस जी एम एम बाई कितनी हाइट पे जाना है, आर प्लस एच, इतनी हाइट पे जाना है. तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, आर प्लस एच. We need to calculate the change in potential energy. Simply the change can be written as potential energy final minus potential energy initial. Final potential energy is minus gmmr plus h minus the initial potential energy gmm by r. Simply आप इसे सॉल्व करो, माइनस gmm by r plus h प्लस gmm/r. जब आप इसे सॉल्व करोगे gmm वाले टर्म एक तरफ, ये बन जाएगा 1/r प्लस h प्लस 1/r, माइनस का टर्म इस तरफ. So you will solve, you will get the value to be gmm सारे टर्म्स एक तरफ माइनस r प्लस h डिवाइडेड बाय r इंटू r प्लस h. स्टूडेंट्स को r गेट कैंसिल, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd. I hope that is clear to you. Now let's move to the next question, that is question number 15th. Time period geostationary satellite का given है this.
एट अ हाइट 6 RE फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना यहाँ पे क्या वैल्यू गिवन है। ये बोल रहा है कि अगर एक सैटेलाइट है जो कि 6 RE सरफेस से ऊपर है तब उसका टाइम पीरियड है गिवन टू बी 24 आवर्स। अगर एक सेम सैटेलाइट, अगर ऐसी सैटेलाइट स्टूडेंट्स 2.5 RE ऊपर है, 2.5 रेडियस ऑफ अर्थ ऊपर है, तो उसका टाइम पीरियड आपको कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स। So we know we can deal this question with Kepler's formula, that is t square is equals directly proportional to r cube. But be focused students, यहाँ पे जो r आएगा that comes from the radius of the surface, यानी आप बीच में से from the surface of earth नहीं calculate कर सकते, you need it to write it from the center of the earth. So you'll write in the first case, that is time period 24 का square is proportional to given, can be written as r cube, that is I am writing 7r cube। 7 क्योंकि बेटा सरफेस ऑफ अर्थ से 6 था तो सेंटर से कितना होगा 7 डिवाइडेड बाय नेक्स्ट टाइम पीरियड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इट विल बी 3.5 r का क्यूब, क्योंकि सरफेस से 2.5 था। when you solve it you will get 24 into 24 divided by t square is equals to 7 into 7 into 7 divided by 3.5, 3.5 into 3.5, this will get 2, 2, 2। तो यहाँ से we'll get the value of time period to be t square value will come out to be 24 into 24 divided by 8। So we'll simply get the value to be 8 1 जा 8, 8 3 जा, तो यहाँ से आ जाएगा टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 24 इंटू 3। अब आपको स्क्वायर खोलना है तो मैं 24 के टर्म्स को खोल रही हूँ, दैट विल बिकम सिंपली 8 इंटू 4 इंटू 3। 8 का टर्म खुल जाएगा स्टूडेंट्स एज 8 का टर्म कैसे खोलेंगे आप, सॉरी 6 इंटू 4 इंटू 3, 6 का टर्म खोलोगे 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3। तो आप देखोगे यहाँ से सिंपली ये वैल्यू आ जाएगी एज 6√2r। ये सारे जब आप टी स्क्वायर है अंडर रूट करोगे तो अपने आप ये वैल्यू आएगी 6√2r। सो द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सेकेंड। आई होप स्टूडेंट्स यू आर फॉलोइंग मी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉडी वेट ऑन द सरफेस, वो कितना वेट करेगी अगर मैं हम इतने डेप्थ पे चले जाए। वी नो जी डैश वेट जब भी बदलता है, वेट अगर सरफेस पे एम जी है तो अगर किसी और हाइट या डेप्थ पे जा रहे हैं इट विल बी सिंपली एम जी डैश। आप जी डैश की वैल्यू निकालोगे जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर। आप कितना नीचे जा रहे हैं, आप जा रहे हैं हाफ द सेंटर ऑफ अर्थ, दिस विल बी 1 माइनस आप जा रहे हो आधा सेंटर ऑफ अर्थ, दिस विल बी सिंपली रिटन एज दिस। आर का टर्म कैंसिल, जी डैश की वैल्यू आ जाएगी जी 1 माइनस हाफ, ये बन जाएगा 1/2। जी डैश की वैल्यू आ जाएगी दिस। आपको पता है कि वेट क्या होगा, सिंपली डब्ल्यू डैश बाई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी डैश बाई एम जी। नया वेट दैट इज वेट एट दैट पॉइंट विल बी डिवाइडेड बाई 200, जो वेट हमें गिवन है। मास से मास कैंसिल, because mass is a constant quantity which is always constant। g dash की वैल्यू है g by 2 into g से g कैंसिल, w dash की वैल्यू बन जाएगी 100 न्यूटन। when you solve you'll get 100 newton, so the answer is option number 4। let's move to the next question। work done, अगर आप h हाइट लेके जा रहे हो विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। स्टूडेंट्स डोंट गेट कंफ्यूज कि अगर आप h हाइट लेके जा रहे हो तो ये मत सोचना mgh वाला फॉर्मूला लगा देंगे। पोटेंशियल एनर्जी तो मैम यही होती है, बट बेटा एक्चुअली तब होती है जब आप बहुत ही छोटी हाइट चलो। जब आपने बहुत ही छोटी हाइट चली हो तभी आप ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे इस क्वेश्चन में गिवन है कि h हाइट है रेडियस के बराबर, तो यू कैन इजीली एज्यूम कि हाइट बहुत बड़ी दे रखी है, तो आपको इसे पूरी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। दैट इज ये हमने लिखी इनिशियल एनर्जी, ये मैंने लिखी फाइनल एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी विल बी पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम बाई आर एंड द फाइनल एनर्जी विल बी माइनस जी एम एम। दैट इज आप कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है, कितनी हाइट पे आ गई 2r। सिंपली द चेंज
in potential energy will be U final minus U initial. फाइनल एनर्जी है माइनस GMM/2R, माइनस इनिशियल एनर्जी है माइनस ऑफ माइनस, दैट इज माइनस GMM/R. When you solve, you'll get GMM/R minus 1/2 plus 1. So the term cuts out to be GMM/R into 1/2. आप सिंपली इसे लिख सकते हो एज mgr/2. अगर मैं यहाँ पे g का टर्म खोलूं तो स्टूडेंट्स इट्स क्लियरली द ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा सेकंड. आपने यहाँ पे क्या यूज किया है, g की वैल्यू यूज की है GM/R², जब आप इसके बाद यूज करें. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 18. इन द क्वेश्चन नंबर 18 इट इज गिवन कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, यहाँ पे. So students, the key to this answer is क्लैपनर ने जो लॉज दिए थे उन्होंने बोला था कि सन के पास किसी भी पार्टिकल की सबसे ज्यादा वेलोसिटी होती है इस पॉइंट पे, जब वो सन के सबसे पास होता है, और वेलोसिटी सबसे कम होती है जब वो सन से सबसे दूर होता है. तो वेलोसिटी एट ए इज मैक्सिमम and velocity at c is the minimum. So we can write kinetic energy at A is maximum while kinetic energy at C is the minimum. सबसे कम होगी, सबसे ज्यादा होगी A पे और फिर होगी स्टूडेंट C पे. So the option number second is the correct answer.